Good afternoon, students. I hope you will be safe and secure in your house. Okay. Today we shall read chapter 14, active and passive voice. Okay. Active voice. Do you know what is active and what is passive? Okay. Active voice. This is called subject to the verb. Subject to the verb. Okay. Passive voice, object to the verb. Object to the verb. Okay. In active voice, we have to take an example. Okay. Here, Ravi killed a snake. Okay. First, we have to check subject, verb, and object. Okay. This is subject. Okay. This is verb, and this is object. Okay. In passive voice, subject become object and object become subject. Okay. Understood? So what will be here? A snake. A snake here is killed by Ravi. Okay. It means subject will be object, object will be subject. Okay. In passive voice. Okay. And we always use past participle to make passive voice. Okay. Subject will go at the position of object by the use of by. Okay. यानी सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट टू द वर्ब होता है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट टू द वर्ब. ओके. हियर रवि किल्स ए स्नेक. ओके. हियर सब्जेक्ट इज व्हाट? रवि. ऑब्जेक्ट इज हियर a snake. Okay. So a snake will be subject and Ravi will be object. Understood? And this will be transformed. Okay. In passive voice. Okay. See how we can transform active into passive. So first we have to check some rules. Okay. Do you know tense? There are three types of tense. Okay. Present tense. First we have to check here. Present. Here. Present. Past. Past and future. Okay. सर दूसरे में चल गया, अभी मेरा कंटिन्यू पीरियड है. See there, present, past and future. Okay. Here in present, okay, there are four types of sentence. It means present indefinite. See, this will be active voice and this will be passive voice. Okay. Check what here. Present indefinite first. Present indefinite. How you will recognize? If there is does or do plus main verbs first form, it will change into passive. Helping verb is and are plus main verbs third form. Okay. Continuous tense. Continuous
कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेक करेंगे, यू विल गेट इज एंड आर प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, ओके, इट विल चेंज इनटू पैसिव इज एंड आर प्लस मेन वर्ब्स, सॉरी बीइंग, ओके, प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म. Present perfect tense we have to check. Perfect tense you will get has, have plus main verbs third form, okay. It will convert, it will change into has, have plus here been plus main verbs third form, okay, third form. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है. आइए चेक करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ओके. पास्ट इंडेफिनिट you will get main verbs second form or did plus main verbs first form, understood. It will change into passive was, were plus main verbs third form. Same way continuous tense में was, were प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी रहेगा, ये चेंज होगा was, were प्लस बीइंग, ओके, प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म. यानी पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. वही पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं. परफेक्ट टेंस में आपको क्या मिलेगा, हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म. इसे चेंज करेंगे तो हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ओके. दिस इज द चेंजेस इनटू टेंस, ओके. सी देन यानी और इसके बाद जो भी मॉडल वर्ब्स आते हैं या मॉडल्स जिसे कहते हैं, ओके, मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब में चेक करें. मॉडल वर्ब में आपका क्या आएगा बेटा, मॉडल्स जिसे कहते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, विल, कुड, विल, कुड, शैल, शुड, शैल, शुड, कैन, कुड, okay, can, could, may, might, okay, etc. This will be in active voice. यानी ऐसा आपको एक्टिव वॉइस में दिखाई दे तो ठीक पैसिव वॉइस में आपको करना क्या है कि पैसिव वॉइस में आपको मॉडल्स के साथ मॉडल्स प्लस बी का प्रयोग करेंगे प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ओके. ये चीजें हमेशा याद रखेंगे, ठीक है. यानी मॉडल्स प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. बाकी जैसे आप चेंज करते हैं वैसे आप चेक कर लेंगे, ठीक है. अंडरस्टूड. चलिए एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ओके. आइए वन को चेंज करते हैं, ओके. देखें कैसे चेंज करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग देखते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओके, जैसे एक्टिव में क्या होगा, मान लेते हैं एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है. एक्टिव में रवि किल्स a lion, ओके.
अब ये सबसे पहले आपको चेक करना क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक वर्ब है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा था कि सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ओके, ए लायन, ओके। इसके बाद अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके साथ इज एम आर सब्जेक्ट के आधार पर जाता है, ठीक है। तो इज किल, किल्ड, ओके, किल्ड बाय हियर रवि, यानी ऑब्जेक्ट को बाय से जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एक्टिव कंटीन्यूअस में, रवि was doing his work, ओके। अब एक कंटीन्यूअस है, सॉरी इज, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, चेक करें। पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ये सब्जेक्ट है बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क, इज का क्या हो जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क इज बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग, डू डिड डन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं तो डन, इसके बाद बाय का इस्तेमाल करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसे यहां पे ले लेंगे, क्या हो जाएगा, रवि। अंडरस्टूड बेटा? सो दिस वे यू हैव टू चेक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे देखें एग्जांपल्स और परफेक्ट का देखते हैं एग्जांपल। परफेक्ट टेंस में जैसे रवि हैज डन हिज वर्क, ओके। ये देखें हैज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी चीजें सेम, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क, इसके बाद हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन, डू डिड डन हो ही रहता है तो क्या लिखेंगे, डन, इसके बाद बाय रवि, ओके। ये हो गया आपका परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम चेंजेस नहीं करते, ठीक है। उसी तरह से पास्ट का देख लेते हैं, जैसे राम किल्ड रावण, ओके। तो ये पास हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसको ट्रांसफॉर्म करिए तो रावण वाज, ओके, चेक करें यहाँ पे, ये देखें वाज किल्ड, किल्ड बाय राम, ओके। इस तरह से इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चेक कर लें, अगला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का। देखें जैसे he was plucking flowers, ओके। अब चेक करें, वही सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिए तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, इसके बाद क्या हो जाएगा, वाज कि वर्ब, ये प्लूरल है तो वर्ब हो जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लक्ड बाय, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही का हिम। प्रोनाउन में कैसे चेंजेस करते हैं, जैसे सब्जेक्ट के रूप में अगर है ही तो उसका क्या हो जाएगा, हिम, सी है तो उसका क्या हो जाएगा, हर, ऑब्जेक्ट, दे है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, इट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट,
इसके बाद आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। वी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। ओके, इन चीजों को आप ध्यान में देखेंगे। एक यू भी है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट पोजीशन सब्जेक्ट पे रहेगा तो ये होगा, ऑब्जेक्ट पे रहेगा तो ये होगा। ओके, जैसे यहाँ पे चेक कर ले, ही का हमने क्या लिख दिया, बाय हिम। ओके, आगे मॉडल्स में चलते हैं। जैसे यू विल सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए ये मॉडल्स है, तो इस मॉडल्स को हमको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, बाकी ये सारी चीजें सेम है, वर्ब है। इसको सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ए सॉन्ग, इसके बाद क्या होगा, विल है तो विल बी। अभी हमने बताया ना कि जब ये मॉडल्स है तो उसके बाद हम बी लगा देते हैं प्लस मेंबर का थर्ड फॉर्म। तो विल बी सिंग sang sung, तो sung by। अब देखिए यू का वहां पे देखें यू लिखा है। ठीक है, यानी इधर देखें, यहाँ यू को हम ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो यू ही होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, यू। ओके, तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो भी मॉडल्स है उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करके उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ और टाइप के देखते हैं। तो आप टेंस याद रखेंगे। ठीक है, टेंस अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं बना सकते। सो फर्स्ट लर्न टेंस। ओके, देखते हैं आपके बुक में एक एग्जांपल्स दिया हुआ है कि कभी कभी जो इंफिनिटिव आता है, ठीक है, सेंटेंस में, जैसे पैसिव ऑफ इंफिनिटिव, पैसिव ऑफ इंफिनिटिव देखते हैं। यहां देखिए पैसिव ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या है, एक सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पे, आई एम टू लर्न फ्रेंच। आई एम टू लर्न फ्रेंच। सेम वे आप करेंगे, टू बी हो जाएगा। यहाँ पे टू को टू बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम वे में आप करिए तो क्या हो जाएगा, फ्रेंच, फ्रेंच। इसके बाद आप चेक कर लें तो फ्रेंच, अब इसके साथ एम है तो क्या हो जाएगा, फ्रेंच के साथ इज। ठीक है, अब टू के साथ क्या लगेगा, इज, टू बी लर्न लर्न। ठीक है, देख लीजिए, टू बी लर्न क्या हो जाएगा, LEARNT, लर्न। इसके बाद बाई, अब आई का क्या होता है वहां चेक करें, आई का क्या होगा, मी। देखिए आई का मी। ओके, इस तरह से आप चेंज करेंगे। इंफिनिटिव जहां भी है वहां पे आप टू बी लगा देंगे, बाकी सारी चीजें वैसी तरह से रहेंगी। ठीक है, कुछ जैसे सेंटेंस आते हैं इंपैरेटिव, इंपैरेटिव सेंटेंस भी आपको पढ़ना है, जिसमें क्या होगा, कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जहां भी इनका यूज हो सब्जेक्ट के रूप में आपको बना लेना है क्या, यू आर ऑर्डर कर सकते हैं या यू आर रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, या यू आर सजेस्टेड, या यू आर सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। सेंटेंस को हमें चेक करना है कि किस वे में है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं वर्क हार्ड, जैसे एक्टिव में क्या होगा, वर्क हार्ड। अब देखिए कोई आपको कह रहा है कुछ काम करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको कठिन वर्क करना चाहिए। तो क्या करेंगे, यू
आर रिक्वेस्टेड, ओके, या एडवाइस करिए, एडवाइस्ड, ओके, टू वर्क हार्ड। इसको जो भी वर्ब है उसे टू से जोड़ देते हैं, टू वर्क हार्ड, ओके। इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। एक और लिखते हैं एक्टिव में, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं बुक का। एक दिया हुआ है कि वाइप योर फीट, वाइप योर फीट, वाइप योर फीट, ठीक है। इसका पैसिव आप कैसे करेंगे बताइए बेटा, यहाँ पे पैसिव कैसे करेंगे बताइए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, अब टू से इसको जोड़ देंगे, टू वाइप योर फीट, टू वाइप योर फीट। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यही मेन चीजें हैं, इसी को आपको देखना है। तो सी इन योर बुक, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी चेंज, ओके। सो आई होप यू will understand very well to see the videos, okay. Thank you. Keep laughing.